Okay, good morning everyone. So now we will going to do the third exercise of 15th lesson of 8th standard, that is trapezium, area of trapezium. So first was it the trapezium. Trapezium nothing but it is a quadrilateral where only one pair of side are parallel to each other, not the both, only one pair. They may be figure like this, otherwise if the figure comes in like this, जब नहीं ऊपर नीचे के होंगे लेफ्ट राइट के भी पैरेलल हो सकते हैं. This type of figure is called as the trapezium, where the one pair of side are parallel to each other, maybe the left right, maybe the up and down. Then trapezium also another one type is there, that is called as isosceles trapezium. That is in question number 3 you will get when the both side non-parallel side are comes in equal. जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रैपेजियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रैपेजियम. बट ट्रैपेजियम में क्या होता है ना, खाली दो पैरेलल होंगे. मैं आइसोसेल्स ट्रैपेजियम तो बाद में बताऊंगा उस टाइम में. ओके, अभी पूरे डिटेल्स उसमें नहीं जाना है कि हमको सिर्फ एरिया करना है उसका. तो पहले एरिया का फॉर्मूला बैठ कर देते हैं, लिख लेते हैं पहले. एरिया इक्वल्स टू, एरिया मीन्स एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. अगर हम इसको जनरल की शॉर्टफॉर्म में याद रखते हैं तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, वेयर ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, आर द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. चलो पहले ये फॉर्मूला कॉपी कर लो पहले. चलो अब फॉर्मूला रीड कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या होता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का लेंथ जो होगा दोनों को प्लस कर देना है, इंटू हाइट. हाइट मीन्स कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो उसको शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और द ए प्लस बी इज द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, अगर हमको उसको फॉर्मूला में लिखना है ऐसे. ओके, चलो अभी क्वेश्चन में करते हैं, पहले ये लिख लो. अब क्वेश्चन देखते हैं. देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक फिगर तुम्हें दिया हुआ है, मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं अभी. वन फिगर इज गिवन, इन दैट फिगर ए डी सी बी या ए बी सी डी सी, दिस टू आर द पैरेलल लाइन, दैट मीन्स इट्स ए ट्रैपेजियम. Okay, so question given in quadrilateral ABCD, length of AB equals to 13, where the AB is given 13, length of DC is equal to 9, DC means down one 9, length of AD means C, the perpendicular is here, that is 8, that means height. Find the area, that means all the things are given, you have to find the area. That means if I write here, I can write here AB is equals to 13 centimeter, DC is equals to 9 centimeter, length of AD is equals to 8 centimeter. Okay, these are the given. So we'll write the formula. तो फिगर बना लेता हूँ. Work of question over. Now we'll do the sum. So all the three data is given, just only you have to write, that means question is the area. So we'll write the formula. What is the formula? Now area of trapezium is equals to half bracket a plus b into h. अदरवाइज तुम पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, देन हाफ इंटू sum of parallel side means these two are the parallel sides, so I can write 13 plus 9 into height is the 8. Parallel side दोनों दिया हुआ है, A and B, that is 13 and 9, height is the 8. Then half into 13 plus 9 is the 22 into 8. Now cancel, 11 8 जा, as it is the area, so it will becomes in the square centimeter. चलो once again repeat.
nothing difficult, just to remember the formula. Two sides, the parallel sides are given, height also given, you have to find the area, and we know the formula. If you don't want to write this one, you can write the formula also, half into sum of length of parallel side into height, but shortcut में ये भी लिख सकते हो. Then half into sum of parallel side means 13 and 9 because these two are the parallel side. Remember, ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है समझ रहे हैं? ये देखो कैसे जा रहे हैं. पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? जो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करते, बट ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर लेंगे अगर यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे. तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल है. दोनों पैरेलल लाइन का प्लस किया, हाइट जो दिया 8 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा. समझो फर्स्ट वन. सेकंड वन ऑल्सो एग्जैक्टली सेम है. चलो फर्स्ट वन कंप्लीट करा, तब तो मैं सेकंड वन देखता हूँ. वीडियो पॉज करना है, तुम्हें हर एक सम करना है. Now I'll go for the question number 2. What is the question number 2 given? The question number 2 is given, length of the two parallel sides of a trapezium are 8.5 and 11.5. Here the figure is not given, so what you will write in the given? You will write the given like this: A is equals to 8.5 because you know the A and B is the length of parallel side, and the height is given 4.2, that means it is 8. Find the area. Area is the question mark. Now I have a strong belief that you can do all. एक बार मैं कर दे रहा हूँ, पॉज करके तुम पहले करो, फिर वेरीफाई करो तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है. सो यू नो, यू विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ A plus B into H. A is here plus 11.5, H is the 4.2. So if you add 8.5 plus 11.5, 8 plus 8, 11 plus 8, 19.5 with the 1, that means I can write 20 directly. समझ रहे मैं 20 कैसे किया? 11 plus 8, 19.5 means 1, 19 plus 1 हो गया 20, then 2 it will be 10. Anything multiply with the 10, just remember if it is a decimal number, the point will shift to the right side, आगे शिफ्ट हो जाता है. that means it will be 42 square centimeter. Once again repeat. Two parallel side is given, height also given. Here the figure is not given, so write AB and H. Then area formula, know the half into A plus B into H. So half into A is the 8.5, B is the 11.5, H is the 4.2. Now if you add these two, the addition will be 20. If you cancel with the 2, it will be 10. Anything multiply with the 10, या तो 0 आ जाएगा वहाँ पे. अगर डेसिमल नंबर है तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. 42.0 means 42 it is, so 42 square centimeter. Now I'll go for the third one, and this one is the important lately. हर एक एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और रहता है इंपॉर्टेंट. तुम्हारा काम है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना. See what is given third question. PQRS is an isosceles trapezium. मैं स्टार्टिंग में तुम बता रहा था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मीन्स क्या होता है? इट्स ए ट्रेपेजियम वेयर द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं इस टाइप के ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. Now it's an isosceles trapezium written and PQ length. If I draw the figure, okay. I'll draw the figure here. But the PQ is given 7. Segment PM perpendicular to SR, SM is equals to 3. Distance between two parallel lines is 4. Find the area of quadratic PQRS. अभी तुम क्वेश्चन देखो, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया था. Question is given, PQRS is a trapezium where the length of PQ is 7 cm. And PM is a perpendicular where the SM is the 3 cm and PQ, distance between these two means the height is given 4 cm. Now the question is given area. Just the difficulty, what is the difficulty of this here? We know that area formula is the half into A plus B into H.
So you can say that one side is given, very good, height is given, it's okay. But what about the second side, the second parallel side, only this part is given 3. What about this all? जब तक हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा तो पूरा तो मालूम पड़ेगा नहीं, और पूरा नहीं होगा तो हम सम कैसे करेंगे फिर? सो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करना है देखो। पहले मैं गिवन लिख लूँ थोड़ा सा। गिवन में लिखा हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल PQRS लेंथ ऑफ PQ is equal to 7 centimeter, length of PM is equal to 4 centimeter, SM is equal to 3 centimeter. Okay, these are the given things are given. So I'll write you another one statement. I'll write you draw QN perpendicular to SR. अभी मैंने क्या ना, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश किया। मैंने ड्रॉ इसलिए किया कि मुझे उसकी ज़रूरी है। ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू SR। अब इससे क्या हो जाएगा देखो, अभी हमको इतना पूरा नहीं मालूम था। ये ड्रॉ करने से हमको एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 है। अभी देख के पता चल रहा है, बट हमें देखने से मार्क्स नहीं मिलता, हमको लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा पहले। तो फर्स्ट आई राइट सी QN परपेंडिकुलर टू SR हमने ड्रॉ किया। गिवन में था PM परपेंडिकुलर टू SR। When these two lines are the parallel line, they are the perpendicular, both perpendicular, that means these two will be parallel to each other. जब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है, they are parallel also. That is called the some interior angle theorem is there. When you go for higher standard, you will go study on that properties and all. Just now remember that when the both are perpendicular, that time they are parallel to each other. So I can say that the distance of PQ is equals to the length of PQ, length of MN, and you will write the region over here. So I'm writing here little. Length of PQ is equals to length of MN, region, distance between two parallel lines. So you can do one thing, you can write here. So PM पैरेलल टू QN। अभी हम बता दिए दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए एक दूसरे को पैरेलल हो गए। देन दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा सेम हो जाएगा। तो PM 7 था तो MN कितना हो जाएगा 7, दैट मीन्स MN इक्वल्स टू 7। यहाँ से हमको एक चीज़ मिल गया, ये 7 हो गया। अभी भी एक चीज़ हमको प्रॉब्लम है NR। अब NR फाइंड आउट करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं। आइसोसेलेस ट्रापेजियम दिया था तो यहाँ पे मार्किंग भूल गया। आइसोसेलेस ट्रापेजियम वाले दोनों सेम होना चाहिए। ओके, तो पहले तुम्हें क्या करना है, मैं स्टेप्स डिवाइड कर लेता हूँ। ये हो गया गिवन, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किए, उसकी वजह से इतना हो गया। जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया और ये दिया हुआ था तो दोनों पैरेलल हो गया, दोनों पैरेलल हुआ तो दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम हो गया। तो ये 7 है तो यहाँ पे 7 मिल गया। दैट मीन्स अब जो इतना हमारा डाउट था अब इतना क्लियर हो गया, अब इतना ही बचा है। अब इतना फाइंड आउट करना है। अभी सेकेंड स्टेप में क्या करना है तुम्हें, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कंपेयर करना है। देखो ज्योमेट्री में दो चीज़ होता है, एक सिमिलैरिटी और एक कॉन्ग्रुएंट होता है। इससे पहले तुम पढ़े होगे सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्टली सेम होते हैं। अगर मैं दोनों को एग्जैक्टली सेम बता दिया तो फिर ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस ये दोनों को एग्जैक्टली सिर्फ बताना कैसा है, वो कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल PMS एंड ट्रायंगल QNR। कौन सा ट्रायंगल लिया, PMS QNR। ये जो दोनों साइड है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और दोनों हाइपोटेन्यूस देखो सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूस PS इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस QR। ये हमको गिवन में दिया हुआ है, बुक में दिया है, दोनों इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। देन दिस PM इज इक्वल्स टू QN। ये दोनों सेम होगा। फिर डाउट होगा सर ये दोनों कैसे सेम है, तो दिया नहीं है। बोथ आर हाइट ऑफ द फ्रॉम द सेम, दोनों क्या है हाइट। यहाँ पे लिखोगे बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ, अदरवाइज यू कैन साइड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, इट विल बी बेटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके, अभी ऑब्जर्व करो क्या है सर, ये डिस्टेंस टू पैरेलल कैसे हुआ। ऑलरेडी ये दोनों पैरेलल है, तो अभी तो ट्रापेजियम बनाइए।
जो दोनों पैरेलल है उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सेम नहीं हो जाएगा। और ये एक प्रॉपर्टी होता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस और एक साइड सेम होता है देन ट्रायंगल PMS कांग्रुएंट ट्रायंगल QNR बाय हाइपोसाइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये एक टाइप का टेस्ट होता है, ये टेस्ट को जो पास हो जाते हैं वो कांग्रुएंट हो जाते हैं। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो ये SM को मैं इक्वल कर सकता हूँ अभी NR के साथ। और ये जो प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मेरा NR मुझे मिल गया 3। मैं अगर कंप्लीट कर दूँ पूरा समझाऊँगा फिर। जब मुझे ये मिल गया अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया। पैरेलल साइड मिल जाएगा, हाइट तो दिया हुआ है कैलकुलेट कर लेंगे। अब एरिया के लिए हमको एक साइड दिया हुआ है, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ SR इज इक्वल्स टू SM प्लस MN प्लस NR। दैट मीन्स 3 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू जब ये मिल गया देन लास्ट विल फाइंड एट द लास्ट दैट एरिया। I'll write it here. Area of trapezium is equals to half into A plus B into H. Half into my A is the 7 and B is now we got 13. H is given 4. So half into 20 into 4. So 10 into 4 is the बस एक ही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जिसको बोल सकते हो और इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मैं स्टेप में डिवाइड करूँगा तुम समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ से समझ में आ गया। ओके देन फर्स्ट स्टेप अभी स्टार्टिंग से करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है ना PQRS एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसका PQ 7 दिया था, ये एक परपेंडिकुलर 4 दिया था और इतना सिर्फ 3 दिया था। पहले लिखे ड्रॉ QN। चलो समझाते हैं QN ड्रॉ क्यों किया ना। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड दिस टोटल साइड बट व्हेयर इज द 3 इज गिवन ओनली द सम स्मॉल पार्ट इज गिवन एंड दिस मच इज नॉट नोन टू अस। So to find this one, so what I did first, I draw in perpendicular. As I draw the perpendicular, it means that the distance of this will be equal to this. So the 7 will be equal to that PQ will be equal to MN. But how we written the CO? QN हमने draw की है, PM in perpendicular to SR बुक में दिया हुआ था. So I can say that PM parallel to QN. अगर तुम्हें कोई पूछे कि parallel क्यों हुआ, when both are perpendicular, they must parallel to each other. जब दोनों perpendicular होते हैं, वो एक दूसरे को क्या होते हैं, parallel होते हैं. जब ये दोनों पैरेलल हुए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है. दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ PQ किसको क्या होगा, MN को. तो PQ हमारा कितना दिया था 7, तो MN कितना हो गया. तो पहला पार्ट हमारा मिल गया कि MN कितना है 7. अभी हमारा डाउट क्या है ना, पूरा में से इतना अभी मिल गया, सिर्फ इतना चाहिए. अब इतने फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. ट्रायंगल में रिलेशन में आता है, कंपैरिजन में आता है सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट. अभी अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इसका हर एक चीज़ ना इसके साथ इक्वल होगा. अब ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा. ये अगर कुछ मिला होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 मिला तो ये भी 5 हो जाएगा. बट हम लोग सिर्फ इससे मतलब है, पहले हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दोनों ट्रायंगल का नाम लिखें. दोनों का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है. तो हाइपोटेनस दोनों इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है. तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. हाइपोसाइड टेस्ट में कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा. ना तो टोटल साइड विल बी 3 + 7 + 3 विल बी 13. उसके बाद तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया वो. और एक बार गिवन लिख लिए. एक ड्रॉ करते ही हम वहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देंगे. जैसे हमने ये ड्रॉ की है तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था. ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो गए. देखो कौन सी दोनों लाइन है, दिस 2 QN एंड PM. जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये PQ और MN इक्वल हो जाएंगे. पहला स्टेप. सेकंड स्टेप क्या याद रखना ना, ये हमको मिल गया, ये फाइंड आउट करना. इसके लिए हमको दोनों ट्रायंगल लेना है. दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये 4 लाइन याद रखोगे. इन दिस ट्रायंगल दिस 2 आर द इक्वल, दिस 2 आल्सो इक्वल. सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोसाइड टेस्ट. एज दिस 2 आर द कॉन्ग्रुएंट देन SM विल बी इक्वल्स टू NR. अब SM और NR इक्वल हो गया तो 3 मिल गया. फर्स्ट एज वी गेट द 3 हियर, सो द टोटल साइड विल बी 3 + 7 + 3 विल बी 13. देन गो फॉर द
area formula. Area of trapezium is half into sum of parallel side into height, that is a plus b into h. 7 plus 13 into 4, 7 plus 13 is the 20. If you cancel 2 and 20, it will be 10. 10 into 4 is the 40, and as the area should become the square centimeter. Only this question little difficult, so try to practice as much as possible, so you'll get the easy one. Okay, this much only remember today.